Hello children, welcome to your English video class. Children, in our previous video, we have already started chapter 6 of your English course book, English textbook. The name of the chapter is The Magic Paintbrush. ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. इसका हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड कॉम्प्रीहेंशन ए, बी एंड सी ऑफ दिस चैप्टर. ये तीनों चीजें हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस. जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट सम ऑफ देम. But before that, as we always do, we will have a quick recap of the chapter and the exercises which we have already done. जो हम exercise पहले कर चुके हैं उसका एक quick revision करेंगे और चैप्टर का भी एक रिविजन कर लेंगे. ऑलरेडी हम चैप्टर का रिविजन कई बार कर चुके हैं, अपने हर वीडियो में करते हैं. जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है हम हर चैप्टर के हर वीडियो के स्टार्टिंग में चैप्टर का रिविजन करते हैं. So in today's video we will revise the chapter quickly and the exercises which we have already completed, and then we will move on to the new exercise. Okay, so let's have a quick revision. Children, this chapter Magic Paintbrush is about a boy named Jack. That boy loved to draw. But he was very poor. He was so poor that he could not afford to buy pen, pencils or colors. But since he loved drawing, he used to draw on sand using stones, sticks and his fingers. So once while he was drawing on ground, an old man saw him. The old man asked him whether he would like to fill colors in his picture. Jack replied that old man that he is very poor and he cannot afford to buy colors. So the old man gave him a golden paintbrush. Jack felt very happy after receiving that paintbrush, and then he painted a duck. The moment he finished the painting of duck, the duck became real. It came to life and it flew off the paper and it jumped onto the pond. Now Jack realized that the paintbrush which was given by that old man was actually a magic paintbrush. So since Jack was poor, he decided that he would help poor. He was a kind boy and he decided that he would help poor in the village. So he painted a bullock for a poor farmer. Why did he paint bullock? Because farmer normally they need a bullock for plowing their land. किसानों को जरूरत होती है अपने खेत में प्लॉइंग की, इसलिए और प्लॉइंग के लिए उनको बुलक्स चाहिए होते हैं. सो ही पेंटेड अ बुलक फॉर द पुअर फार्म. देन ही पेंटेड फूड फॉर द नीडी पीपल. ही पेंटेड टॉयज फॉर पुअर चिल्ड्रन. दिस मीन्स दैट ही यूज्ड टू हेल्प poor people. He started helping poor people using his magic paintbrush. Now the king of that area, he heard about Jack and his magic paintbrush. So he sent his soldiers to find about Jack. The soldiers came and they took him to they asked him first that the king wanted him to paint some money for him. The king wanted Jack to paint some money for him. Jack refuses. He says no. So soldiers took him to the king. King now shouted at him. King asked him to paint a sack of gold coin. Again, Jack bravely said no. Now the king became angry and he put Jack into the prison. He ordered his soldiers to put Jack into the prison cell. In the prison cell, Jack painted a key for the lock and a horse to ride away. But after this, when he
escaped from that cell, the soldiers chased him. The soldiers followed him. So he painted a big hole on the ground and the soldiers fell into that hole. And in this way, Jack escaped from that prison cell. So this was the story of the chapter, The Magic Paintbrush. Children, we have completed question answers of this chapter. So let's have a quick revision of the question answers. Orally, I would revise the questions. First question is, you can open your book, page number 57. Answer the following questions, which we have already done. So I would orally read out the question and the answers. Question 1. Why did Jack draw with stones, sticks, or his fingers? Children, Jack drew with sticks, stones and his fingers because he was too poor to buy pens, pencils or colors. Question number 2. What did the old man give him? What did the old man give him? Answer is, the old man gave him a golden paint brush. Question number 3. In what way did Jack help the farmer? Answer is, Jack helped the farmer by painting a bullock for him. Question number 4. What did the king want Jack to paint for him? Answer is, the king wanted Jack to paint a sack of gold coins for him. The king wanted Jack to paint a sack of gold coins for him. Question number 5. What did Jack paint to escape? Jack painted a key for the lock and a horse to ride away. These were the question answers. Now, part B of the comprehension, that also we have completed. So let's have a quick revision of that also. Put the sentences in order by writing the correct number. Children, some sentences are given. As you can see in your book, you have to arrange those sentences in order by writing numbers in front of each sentence. कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको उन सेंटेंस की आगे नंबरिंग करनी है करेक्ट ऑर्डर में. कौन सा सेंटेंस पहले, कौन सा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद. यू हैव टू पुट देम इन ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर्स एज पर द स्टोरी. जो स्टोरी है उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना था ऑर्डर में. सो लेट्स रिवाइज दैट ऑल्सो. चिल्ड्रन, सेंटेंस नंबर 4 के आगे आपको 1 लिखना है. जैक वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव्ड टू ड्रॉ. दिस इज सेंटेंस 1. देन सेंटेंस नंबर 3 के सामने आप 2 लिखेंगे. जो सेंटेंस नंबर 3 है आपके बुक में, उसके आगे आप 2 लिखेंगे बिकॉज इट इज सेकेंड इन ऑर्डर. द सेंटेंस इज, एन ओल्ड मैन गेव हिम अ मैजिक पेंट ब्रश. An old man gave him a magic paint brush. This is sentence number 2, second in order. Third one is, he painted a bullock for a poor farmer. This is third sentence. So sentence number 6 के सामने आप 3 लिखेंगे. जो आप काउंट कीजिए, जो सेंटेंस 6 नंबर पे है उसके सामने आपको 3 लिखना है. He painted a bullock for a farmer. Then नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर 4 आपका होगा. जो 5th नंबर पे जो सेंटेंस लिखा है, नंबर 5 पे जो सेंटेंस लिखा है उसके सामने आप 4 लिखिए. क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर में 4th नंबर पे है. द किंग आस्क्ड जैक टू पेंट अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स. 5th नंबर जो सेंटेंस है, काउंटेड फ्रॉम टॉप, 5th नंबर सेंटेंस के सामने आपको 4 लिखना है बिकॉज दैट इज 4th इन ऑर्डर. देन सेंटेंस नंबर जो 2 है उसके सामने आप 5 लिखेंगे. द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन. सेंटेंस नंबर 2 के सामने 5 लिखना है. द किंग पुट जैक इनटू द प्रिजन. देन सेंटेंस नंबर 1 जो सबसे टॉप पे सेंटेंस लिखा है उसके सामने आप लिखिए 6. वो 6th है, सीक्वेंस में वो 6th नंबर पर है. दैट सेंटेंस इज 6th इन सीक्वेंस. ही पेंटेड अ की एंड अ हॉर्स. He painted a key and a horse.
देन आप अपना टॉप से काउंट कीजिए, जो 7th नंबर पे जो सेंटेंस है उसके सामने आपको 7 ही लिखना है। 7th जो सेंटेंस है वो 7 नंबर पर ही है, सीक्वेंस में उसका नंबर 7 है। द किंग्स सोल्जर चेस्ड जैक, दिस इज 7th। एंड लास्ट वन, जो लास्ट सेंटेंस है 8 नंबर जो सेंटेंस है वो ऑर्डर में भी 8th नंबर पर ही है। जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है उसके सामने आपको 8 लिखना है क्योंकि वो 8th नंबर पर है। जैक पेंटेड अ होल एंड द सोल्जर्स फेल इनटू इट। जैक पेंटेड अ होल एंड द सोल्जर्स फेल इनटू इट। सो चिल्ड्रन, यहां तक हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। सो फॉर टुडे विल डू कॉम्प्रिहेंशन सी। कॉम्प्रिहेंशन का जो सी पार्ट है दैट वी विल डू टुडे। चिल्ड्रन, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन दैट, उसमें हमें करना क्या है, एंड देन वी विल सॉल्व दैट। विल डू दैट। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू कैन यूज द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। यूज the words from the lesson to complete the following sentences. You can use the help box given below. आपको क्या करना है? Some sentences are given on page number 58, comprehension C. Comprehension जो C है, page number 58. Page number 58 पे देखेंगे, उसमें कुछ sentences दिए. There are 5 sentences given. What you have to do, you have to complete those sentences. आपको वो सेंटेंस को पूरा करना है, उसमें ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और कैसे करना है, उसके नीचे हेल्प बॉक्स दिया है। आपको हेल्प करने के लिए एक हेल्प बॉक्स है, उसमें से आपको वर्ड्स सिलेक्ट करना है, करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करके आपको सेंटेंस में लिखना है एंड यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्लियर? हेल्प बॉक्स में से यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड for the sentence, you will fill that word and the sentence will be complete. Okay, so let's start doing this exercise. Let me write the help box, the words given in the help box. Children, help box is given like this. Look into your book. A help box is given and words are written in that. P-A-I-N-T, paint. B-R-U-S-H, paint brush is written. Then prison, P-R-I-S-O-N, prison. Bullock, B-U-L-L-O-C-K, bullock. Then farmer, F-A-R-M-E-R, farmer. And then soldiers, S-O-L-D-I-E-R-S. Children, these are the words which are given in the help box. Paintbrush, prison, bullock, farmer and soldier. ये words दिए हुए हैं आपके help box में. ठीक है? You have to use these words and you have to complete the sentence. I hope this part is clear. Now let's do the first sentence. Let me write the sentences first. A blank grows crops for us in the field. In the field. Number 2 is all the thieves were sent to the blank. Number 3, it took us 3 days by dash cart to
reach Delhi. ओके, फर्स्ट 3 सेंटेंस करते हैं, देन रेस्ट 2 वी विल डू. पहले 2 हम सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के 2 कर लेंगे. पहला है, लेट फर्स्ट रीड विद मी. अ ब्लैंक ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस इन द फील्ड. कौन हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है, फसल उगाता है, ग्रेन्स, जो सीरियल्स, पल्सेस, जो भी क्रॉप हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो कौन उगाता है. फील्ड का मतलब होता है बच्चों खेत, जहां पर क्रॉप्स उगाया जाता है. तो कौन हमारे लिए करता है, इनमें से व्हाट डू यू थिंक, कौन है जो खेतों में काम करता है और हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करता है. हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो कौन करता है, खेतों में कौन करता है. आई होप हिंट इज क्लियर टू यू. Farmer. A farmer. A farmer grows crops for us in the field. A farmer grows crops for us in the field. हमारे लिए क्रॉप्स कौन उगाता है, फार्मर. नंबर 2, all the thieves were sent to the blank. सारे थीव मतलब चोर, जो स्टीलिंग करते हैं, चोरी करते हैं. तो सारे थीव्स को कहां भेजा जाता है. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. सारे थीव्स को कहां भेजा जाता है. पेन ब्रश में तो नहीं भेजेंगे, बुल्लक बैल पे तो नहीं भेजेंगे. देन यस करेक्ट, प्रिजन, जेल में. PRISON. All the thieves were sent to the prison. All the thieves were sent to the prison. This one. So we have done this also. Number 3. It took us 3 days by blank cart to reach Delhi. हमें 3 दिन लग गए किससे जाने में, डैश कार्ट. कौन सा कार्ट होता है, कार्ट मतलब गाड़ी, पहिया वाली जो गाड़ी होती है. तो टू रीच दिल्ली, दिल्ली जाने, हम दिल्ली गए और हमें 3 दिन लग गए. क्यों, क्योंकि हम किससे गए थे, विच कार्ट, यस, बुल्लक कार्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बैलगाड़ी. बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी. तो इट टुक अस 3 days बाय बुल्लक कार्ट टू रीच दिल्ली. ओके, I hope these 3 sentences are clear. Let's do the rest of the 2 sentences. Sentence number 4. An ordinary, ordinary. An ordinary blank can create beautiful designs. Design की spelling children check and pronounce. DESIGNS. ये वाला वर्ड आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है. DESIGNS, दिस इज स्पेलिंग ऑफ डिजाइन, ठीक है. स्पेलिंग ऑफ डिजाइन, DESIGNS. डिजाइन, प्रोनाउंसिएशन इज डिजाइन. An ordinary blank can create beautiful design. An ordinary blank can create beautiful designs using paint. Got it? An ordinary blank can create beautiful designs using paint. तो ordinary क्या? Ordinary paint brush. Small. An ordinary paint brush can create beautiful designs using paint.
Number 5. The kings black were sent into every part of the country. The kings black were sent into every part of the country. राजा के क्या? Kings. Last word is soldiers. The king's soldiers. राजा के सिपाही. The king's soldiers या सैनिक बोल सकते हो, राजा के सैनिक, राजा के सिपाही. The king's soldiers were sent into every part of the country. We have used all the words. हमने सारे words use कर लिए. And this part of the comprehension we have completed. हमारा ये part पूरा हो गया है. Just let me read out once again. A farmer grows crop for us in the field. All the thieves were sent to the prison. It took us 3 days by bullock cart to reach Delhi. An ordinary paintbrush can create beautiful designs using paint. The king's soldiers were sent into every part of the country. This exercise is done. Now moving on to the next exercise. Children, next is page number 59. Page 59, Grammarly. Grammarly. What is in this? This is about use of verbs. Children, we have already seen a video on verb. हमने एक सेपरेट वीडियो देखा है वर्ब पे जो मैंने बनाया था आपकी ग्रामर एक्सरसाइज जो ग्रामर बुक है उसका. लेकिन विल नॉट टॉक अबाउट दैट चैप्टर बट आई थिंक यू हैव सम आइडिया ऑफ वर्ब. वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब को हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं या हम उसको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. Verbs are also called doing words or action word. And children, बिना verb के कोई sentence complete नहीं होता है और sentence cannot be complete without a verb, without using a verb. एक verb तो उसमें होता ही है तभी कोई sentence complete होगा, otherwise वो complete sentence नहीं होगा. It will not be called as a complete sentence. Every sentence has a verb in it. Okay, so to make a complete and meaningful sentence, I repeat, to make a complete and meaningful sentence, हमें complete और proper meaning वाला sentence अगर बनाना है तो उसमें verb होगा ही होगा, उसमें verb use होगा ही होगा. Verb का मतलब मैंने आपको बताया, verb मतलब होता है action, doing. हम कुछ भी करते हैं, whatever we do, that is verb. जो भी हम करते हैं वो सारा क्या है? एक्शन है. वो सारा एक्शन है, वो डूइंग वर्ड्स हैं, वो वर्ब है. आप बैठे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो या आप सुन रहे हो, लिसनिंग, हियरिंग, वॉचिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, जंपिंग, डांसिंग, एवरीथिंग इज वर्ब. अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपली बैठे हो, दैट इज ऑल्सो वर्ब. क्योंकि आप बैठे तो हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे लेटे हो, लाइंग इज ऑल्सो वर्ब. आप अगर किसी भी एक्शन मोड में नहीं हो, सिर्फ ऐसे ही सिंपली बैठे हो, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वर्ब. उसको भी हम वर्ब ही कहेंगे क्योंकि आप बैठे हो. ठीक है, पढ़ते हो, रीडिंग, ड्राइंग, डांस करना, खेलना, सब कुछ क्या है? वर्ब है. एवरीथिंग कम्स अंडर वर्ब. ठीक है.
ऑल द एक्शंस, वेदर एक्टिव एक्शन या पैसिव एक्शन, सब आपका वर्ब कहलाता है। ठीक है, अभी आप सपोज मैं ये मान रही हूं कि आप वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स यू आर वॉचिंग वीडियो, वॉचिंग इज वर्ब। हंस रहे हो, लाफ इज वर्ब। जंप, स्क्रॉल, रन, ईट, स्पीक, टॉक, सब ऑल दैट इज वर्ब। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन वर्ब ओनली। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द पेज 59 जो है उसमें आप देखिए, एन एक्सरसाइज इज गिवन इन विच यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब्स, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सम सेंटेंसेस आर गिवन और आपको उसमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, जो एक्शन वर्ड है उसको आपको उसमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो शैल वी डू दैट, उसको हम कर लेते हैं फटाफट। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस है, लेट्स रीड द सेंटेंस। पहला हम देख लेते हैं, द क्वीन, कुछ बच्चे इसको क्यून भी बोलते हैं, नॉट, इट्स क्वीन। द क्वीन बेक्ड अ केक। गुड, द क्वीन बेक्ड अ केक, रानी ने केक बेक किया। केक को तो बेक करते हैं ना, वी डोंट फ्राई केक, वी बेक केक। तो केक को क्या किया, बेक किया। एक्शन क्या है, आप देखोगे कि किसने क्या किया, उस पर आप अगर सोचोगे तो आपको एक्शन दिख जाएगा। क्वीन है, कुछ किया, क्वीन ने क्या किया, बेक किया। तो एक्शन हमारा वर्ड क्या है, बेक्ड। द क्वीन बेक्ड अ केक, क्वीन ने क्या किया, शी बेक्ड अ केक। एक्शन क्या है, आप पूछो क्या किया, बेक किया। क्या किया, बेक किया। क्वीन का एक्शन क्या है, बेक्ड, शी बेक्ड अ केक। तो क्वीन का एक्शन है बेक, रानी ने केक बेक किया। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लोगे। नेक्स्ट इज प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ। प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ। यहां पर कुछ एक्शन आपको दिख रहा है, एनी एक्शन, प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ। रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसका, क्या करने के लिए, वॉक। एक्शन इज वॉक, प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ, प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ। यहां पे एक्शन क्या है, वॉक। वॉक इज द एक्शन, वॉक इज द एक्शन। आई होप आपको एक्शन वाला वर्ड समझ में आ रहा है ना। इसमें आपको जो एक्टर फुटपाथ, यू नो फुटपाथ, सड़क के साइड में जिसपे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फुटपाथ। फुटपाथ पैरों से जिसमें पैदल आप चलते हो, दैट इज फुटपाथ, रोड के साइड में होता है। तो फुटपाथ इज नाउन, इट्स नेम ऑफ अ थिंग, है ना, रोड के साइड में जो होते हैं, ये नाउन हो गया। और एक्शन क्या है, वॉक। प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलने के लिए बोला जा रहा है कि प्लीज फुटपाथ पर चलो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। आपको दो मैंने सेंटेंस समझा, ज्यादा से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, सो विल टेक ओनली 2 वर्ड्स टुडे। आज हमने 2 वर्ब वाले से अंडरलाइन किया। वन इज क्वीन बेक्ड द केक एंड प्लीज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको और एक्शन वर्ड सोच के रखना है। हम अपनी ऑनलाइन क्लास में एक्शन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और जो बाकी के सेंटेंस हैं इस एक्सरसाइज के विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ ये मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस कराया है,
this is the introduction and we will complete this exercise in our next video. ये सिर्फ आपको introduction है so that you can have an idea how you have to do this exercise. आपको किस तरह से ये exercise करना है, आपको कैसे ये एक्सरसाइज करना है, उसका ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. बाय द टाइम थिंक ऑफ सम मोर एक्शन वर्ड्स. आप दिन भर में जो भी एक्शन करते हो प्लीज नोट डाउन दोज एक्शन वर्ड्स एंड वी विल डिस्कस दैट इन ऑनलाइन क्लास. आपने कौन दिन भर में जो आपका रूटीन होता है सुबह से उठने के बाद ब्रश करना, फ्रेश होना, खाना खाना, नहाना, ऑल दैट विल कम अंडर एक्शन. तो आप नोट डाउन करो अपने सारे एक्शंस एंड वी विल डिस्कस दैट इन आवर ऑनलाइन क्लास. एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज. वी विल कंटिन्यू विथ दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.